Yesterday we saw the lesson, first part of the lesson, the summit within, written by HPS Ahluwalia. Ahluwalia के बारे में बताया था. Ahluwalia was a major and he was the first Indian to climb on the Mount Everest. This was the team. 8 people, total 8 people climb on the Everest. Mount Everest. आवाज येत नाही कोणाला? येत आहे सर. येच आहे. मग ज्याला आवाज येत नाही बेटा त्याचा प्रॉब्लेम आहे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. ज्याला येत नाही त्याचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. ओके, सो दिस वाज द न्यूज हेडलाइंस आफ्टर दैट अचीवमेंट. नाउ हमने देखा था, ऑथर सेड दैट व्हेन ही क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट देयर वर मेनी emotions in his there were many feelings in his heart, but the most powerful important feeling was he was feeling very humble. Humility चा अर्थ होतो नम्रता. त्याला जास्त वाटायची. he was feeling very polite. त्याला और वो कहता है ऑथर, his physical his body was saying, body क्या कह रही थी? thank God it is over. और and he also felt a little sad. Why he felt sad? Because now he had achieved the ultimate in climbing. Ultimate in the climbing, the world's highest, tallest peak he had already climbed. इसका मतलब क्या था? इसके बाद after this there will be no peak summit which is higher than this Mount Everest. So that's why he is thought that he has already achieved the ultimate aim of his life. Ultimate और last aim, उद्देश्य था. और इसके बाद उसको हमेशा ऐसा कोई summit नहीं मिलेगा जो इससे ऊंचा हो. That's why he was feeling little sad. यहां तक हमने कल देखा था. आगे का हम देखेंगे. See what this is the text. ये text है हमारी. Author says even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone. Now when he was getting down from the summit, getting down मतलब नीचे उतर रहे थे from the summit से, physical exhaustion had got. Exhaustion मतलब क्या? fatigue यहाँ पे दिया. Tiredness, his tiredness had gone. He was feeling better now. I began asking myself the question why I had climbed Everest. Author कहता है when I was getting down from the summit से जब मैं नीचे उतर रहा था, I asked one question to myself. मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा. What was that question? Why I had climbed Everest. मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइंब किया था? मैंने ये इतना डिफिकल्ट जो माउंटेन है, वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट, इसको मैंने क्यों चढ़ने की सोची? Why did I climb Mount Everest? Why did the act of reaching the summit? Why did the act means कृति, कार्य of reaching the summit have such a hold on my imagination? Imagination मतलब जो मेरी कल्पना शक्ति है, मैं उसी के बारे में अभी क्यों सोच रहा हूं? Why does this act of climbing, act of मतलब जो चढ़ने की जो कृति है पहाड़ पर, माउंट एवरेस्ट पर, ये मेरे ऊपर ज्यादा, मैं उसके बारे में क्यों सोचता हूं? Why this has such a hold on my imagination? उसके बारे में मैं क्यों सोच रहा हूं? It was already a thing of the past. Now ये देखो, अभी मैं इसको माउंट एवरेस्ट पर कल चढ़ा हूं, 2 घंटे के पहले चढ़ा हूं, या फिर 1 साल के बाद पहले चढ़ा होगा ये ऑथर. तो कहते हैं इट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट. एक जो हो गया. आई हैव डन दिस. ओके, समथिंग डन यस्टरडे, इट वाज डन यस्टरडे, ये कल की बात है अभी. जो इवन देन उसका जो असर है, इवन देन द इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग ऑन माई इमेजिनेशन, मुझ पर इतना इम्पैक्ट है अभी भी कि मैं सिर्फ उसी के बारे में क्यों सोचते रहता हूं. It was already a thing in the past, something done yesterday. With every passing day, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, every passing day, it would become more remote. Remote मतलब ये इससे बारे में भूलता जाऊंगा. जैसे जैसे दिन बीतेंगे, the memory would become more remote. Remote मतलब दूर दूर की मेमोरी हो जाएंगे. I will start forgetting this. And then what would remain? फिर अंत में क्या रहेगा? When many days would pass, when years, after some years, what would happen? After years,
what would remain? Would my memories fade away slowly? Memories, would my memories fade away? Fade away means go away, faint away, faint हो जाएगी या मैं भूल जाऊंगा क्या इस अचीवमेंट के बारे में जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे दिन पास होंगे? So these questions were. Sir, again tell me. ए बच्चा, जो भी है बेटा अपना साउंड म्यूट कर लो पहले सभी लोग, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा फिलोसॉफिकल लेसन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, उसके थॉट्स जो ऑथर के। तो ये ऊपर के पैराग्राफ में क्या कहा है, यहाँ पर ऑथर ने क्या कहते हैं, व्हेन आई वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट माय बॉडी वाज नाउ देयर वाज नो टायर्डनेस, आई वाज फीलिंग बेटर, एंड दैट टाइम आई आस्क्ड वन क्वेश्चन टू माय सेल्फ, व्हाई डिड आई क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? And he said, now see, this is the thing of the past. This achievement is the thing of the past. ये कल की बात हो गई अभी जो मैंने उसके ऊपर क्लाइम किया. So what will happen after some years? Will I forget everything? Will my memories go away from my mind? सभी भूल जाऊंगा क्या मैं? So second paragraph. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. When he was thinking about all these questions, one more question came in his mind. दूसरा question उसके दिमाग में आया. And what was that question? Why do people climb mountains? लोग mountains climb क्यों करते हैं? आप बता सकते हैं क्या? लोग adventures क्यों करते हैं? किस चीज के लिए लोग mountains climb करते होंगे रे? Can anybody tell me? Sir, passion, hobby. Okay, और hobby के लिए correct है, और enjoyment के लिए करते होंगे. Very good. और adventure के लिए. हाँ, so see, there are different people have different what you call purpose of climbing, doing such activities. तो हर व्यक्ति का अलग अलग ये होता है, उसका उद्देश्य क्लाइम करने का. किसी को एडवेंचर पसंद होता है, किसी को हॉबी होती है, किसी को नेचर देखना होता है. सो देयर आर डिफरेंट रीजन. लेकिन ऑथर क्यों क्लाइम करना चाहता है? लेट्स सी. So he asked one question to himself, why do people climb mountains? So author says that it is not easy to answer the question. जैसे आपने आंसर दिया ना, लेकिन इतना आसान नहीं है. ऑथर कहता it is not a very easy question to answer. He said the simplest answer would be, सबसे सिंपल आंसर क्या है अगर लोग क्लाइम क्यों करते? तो because it is there. What is it क्या है? Mountains are there. माउंटेन्स है, लोग इसलिए क्लाइम करते हैं. अगर माउंटेन ही नहीं होते तो कैसे क्लाइम करते थे? है ना, सिंपल आंसर है. इफ यू आस्क द क्वेश्चन टू सम पीपल, व्हाई डू यू क्लाइम माउंटेन्स? तो दे विल से, सम पीपल, अरे माउंटेन्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी क्लाइम देम. माउंटेन्स है इसलिए क्लाइम करते, अगर नहीं होते तो नहीं क्लाइम करते. ये ऐसा आंसर इतना आसान सिंपल आंसर नहीं है. लेट्स सी. तो आंसर क्या है? ऑथर कहता है व्हाई डू पीपल क्लाइम माउंटेन्स? बिकॉज it presents great difficulties. It means mountain presents great difficulties. It means that if you want to climb the Mount Everest, you will face many difficulties. आपको बहुत difficulties का सामना करना पड़ेगा. Mountains पार करना बड़ा आसान नहीं है. So because mountains present great difficulties, and man takes delight in overcoming obstacle. Delight मतलब happiness, ओवरकमिंग मतलब उस पे पार करना, टू विन ओवर, उस पे विजय पाना. किस पे विजय पाना? ऑब्स्टैकल्स. ऑब्स्टैकल्स का अर्थ होता है हर्डल्स, HURDLES. हर्डल्स मतलब अड़थड़े. अब देखिए क्वेश्चन का आंसर यहां पे मिला हमको. पीपल क्लाइम माउंटेन्स बिकॉज माउंटेन्स प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज. यू हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. वेट. And man takes delight, man becomes happy, people become happy in overcoming those difficulties. Obstacle मतलब वो difficulty, those difficulties को मात देने में, उनके ऊपर विजय पाने में आदमी, इंसान को क्या आता है? मजा आता है, हैप्पीनेस मिलता है. इसलिए people, that's why people climb mountains. This is the right answer, author says. Some people says mountains are there. Simple answer is mountains are there, that's why people climb. But the real answer may be because mountains, there are many great difficulties while climb Mount Everest or any mountain, and man like to
मैन लाइक टू ओवरकम दोज डिफिकल्टीज, ओवरकम मतलब विन ओवर, उस पे मात खाना, ऑब्स्टेकल मतलब हर्डल्स, एंड दैट्स व्हाई people climb Everest or any mountain, author says. Next, the obstacle. अब obstacles कौन से हैं? Obstacle मतलब hurdles कौन से हैं? कठिनाइयां कौन सी है? Difficulties कौन से है? The obstacle in climbing a mountain are physical. दो प्रकार के ऑब्स्टेकल्स होते हैं, एक फिजिकल और सेकंड होता है मेंटल. फिजिकल क्या होता है रे? कोई भी व्यक्ति, अनफिट व्यक्ति माउंटेन कैनॉट क्लाइम, ही कैनॉट क्लाइम माउंटेन पे नहीं चढ़ सकता. सो यू मस्ट बी वेरी फिजिकली फिट होना चाहिए. सो देयर आर ऑब्स्टेकल्स विच आर फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होती है, चढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, तो उसके बाद आपको बहुत स्टीप चढ़ना पड़ता है, और वहां पे आपको बहुत सारी शक्ति की जरूरत होती है, और वहां पे आपको स्टेप बनाना होता है, उसको आप रस्सी से होकर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो उसमें आपको स्टैमिना होना चाहिए. तो दीज आर ऑल फिजिकल ऑब्स्टेकल्स. क्लाइम टू समिट मीन्स एंड्योरेंस. देखिए, क्लाइम टू समिट मीन्स एंड्योरेंस. कोई भी समिट पर, चोटी पर चढ़ने के लिए आप में कौन से 3 गुण होने चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए आप में एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का अर्थ है सहन शक्ति. आप में सहन शक्ति होनी चाहिए. आपको तकलीफ हुई वहां पर चढ़ते चढ़ते, तो यू कैन नॉट लिव इन बिटवीन, बीच में ही आप छोड़ नहीं सकते क्लाइंबिंग, तो आपको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, एंड्योरेंस. सेकंड वन इज परसिस्टेंस. परसिस्टेंस मतलब टू कंटिन्यू द क्लाइंबिंग, कंटिन्यू करते रहना, जारी रखना, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस. बीच में छोड़ना नहीं. थोड़ी सी मुश्किल आ गई, क्लाइंबिंग छोड़ दिया, ऐसा होता नहीं. माउंट एवरेस्ट पे तो बिल्कुल आप आधा ऊपर चढ़ गए, तो बीच में अगर आपको चाहती भी है ना आपको वापस जाना, तो वापस नहीं आ सकते. सो यू नीड परसिस्टेंस. परसिस्टेंस का अर्थ होता है टू कंटिन्यू. अरे यार, एक मिनट, वेट. दिख रहा है ना आपको बच्चों? दिख रहा है? हाँ सर. Yes, sir. यस सर. हाँ सर. वेट, Yes, sir. हमारा भाग गया पीछे. अब देखिए, अब बाद में देखेंगे. अरे यार, कहाँ चला जा रहा? ओके, देखिए, तो 3 क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड. नंबर 1 एंड्योरेंस. इस पे क्वेश्चन आता है, what are the 3 qualities that are required to climb Mount Everest? So these 3 qualities are, number 1 endurance. endurance का अर्थ होता है सहन शक्ति. persistence मतलब वो एफर्ट्स जारी रखना, कंटिन्यू रखना. और थर्ड वन इज विल पावर मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए. आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए ऊपर सक्सेसफुली चढ़ने की. तो these 3 qualities are required to climb any summit of any mountain, कोई भी माउंटेन की. The demonstration of these physical qualities, demonstration means to show. demonstration का अर्थ होता है उसको दिखाना. ये क्वालिटीज को कब दिखाओगे आप? ये तीनों क्वालिटी तो जब आप कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगे, कोई समिट पार करने के लिए आप क्लाइंबिंग स्टार्ट करोगे, तो ये जो फिजिकल क्वालिटीज है आपकी, ये एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, इसका आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा. डेमोन्स्ट्रेशन, यू विल डेमोन्स्ट्रेट ऑल दीज फिजिकल क्वालिटीज. एंड व्हेन यू डिस्प्ले दीज फिजिकल क्वालिटीज, इसका जब आप प्रदर्शन करोगे ये तीनों क्वालिटीज का, इट विल बी exhilarating. Exhilarating का मीनिंग देखिए, exhilarating means very exciting. These 3 qualities when you display, when you show while climbing any mountain, then you will feel very excited, you will feel very happy, as it was for me also. Author says मैं भी बहुत महसूस कर रहा था. I was also feeling very happy. मैंने भी इन 3 क्वालिटीज का प्रदर्शन किया while I was climbing the Mount Everest, the peak of the Mount Everest, the summit of the Mount Everest. I showed endurance, I showed persistence, and I showed willpower. And when I showed all these things, I became very happy, I felt very excited. Next, ये देखो, यही जो हमने पढ़ा उसी का ये है. देखिए, सेम क्या कहता है आकर, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself, अपने आप को क्वेश्चन पूछने लग गया. क्यों? Which question he was asking? Why did I climb the summit of Everest? मैं summit क्यों climb किया? और वो आंसर कहते हैं, it was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. मैं भूल जाऊंगा ये सब चीजें. Then what remain? क्या रहेगा मेरे साथ?
वुड माई मेमोरी स्लोली फेड अवे, मेरी मेमोरी सब खत्म हो जाएंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा. देन These thoughts led to me a question. मैं बैठे बैठे अपने आप को क्वेश्चन पूछने लगा. कौन सा? Why do people climb Everest? And the simplest answer would be because it is there. सबसे आसान कौन सा है? Because mountains are there, so people climb Everest. Then the real answer, the demonstration of endurance, persistence and willpower. सबसे important चीज है ये. If you climb Mount Everest, you have to demonstrate these three things: endurance, persistence, and willpower. And it was also for me. I also showed these three qualities, and these when I showed these qualities, it was very exhilarating, very excited. But man takes delight in overcoming obstacle. Man like to overcome the obstacle. He feel very happy when he win over all डिफिकल्टीज के ऊपर जब विजय पाता है वो खुश हो जाता है. ये तीन क्वालिटीज देखिए. एंड्योरेंस का अर्थ होता है स्ट्रेंथ टू बियर. बियर म्हणजे सहन करणे. स्ट्रेंथ मतलब ताकत सहन करने की शक्ती, जिसको मतलब सहन शक्ति हम जिसको बोलते हैं. परसिस्टेंट, फर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू एक्सेप्ट डिफीट. फर्म डिटर्मिनेशन आपका जो दृढ़ विश्वास होता है किस चीज के लिए, कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं करते रहूंगा. चल मुझे कितना भी कठिनाई का सामना करना क्यों ना पड़े, मैं आगे बढ़ता रहूंगा. इसको कहते हैं परसिस्टेंट. और एक विल पावर आपको मैंने बताया, विल पावर मतलब कुछ भी करने की दृढ़ शक्ति होना. एक्सिलरेटिंग, एक्साइटिंग. ओके, नेक्स्ट. ऑथर ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. मेरा आंसर डिफरेंट है. कौन सा आंसर? लोग क्यों क्लाइंब करते मैंने बताया, लेकिन why I climb Mount Everest, there is different answer for this question. मेरा आंसर क्या है? He says that from my childhood, बचपन से I have been attracted by mountains. Since my childhood, जब से मैं बच्चा था, I have been attracted by mountain. Mountain से मैं हमेशा अट्रैक्ट हुआ हूं. माउंटेन्स ने मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया है. I was always attracted by mountains. I liked mountains. I had been miserable. Miserable means sad. मैं मिजरेबल रहता था, सैड रहता था, लॉस्ट रहता था. लॉस्ट मतलब खोया खोया रहता था. वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, वेन एवर आई वॉज गोइंग अवे, लिविंग अवे फ्रॉम द माउंटेन्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम द माउंटेन्स. ये बचपन की बात कर रहे ऑथर. जब भी मैं बचपन में माउंटेन से दूर जाता था या फिर कोई दूसरी ऐसी जगह जाता था जहां पर माउंटेन्स नहीं है, तो मेरी कंडीशन क्या रहती थी? आई फेल्ट वेरी सैड. मिजरेबल मतलब सैड. आई फेल्ट वेरी लॉस्ट. लॉस मतलब खोया खोया रहता था. एंड कहां से? वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, माउंटेन से जब दूर जाता था. इन द प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन एरिया, जैसा कि हमारा वाशिम शहर है या फिर आपका गांव है जहां पे माउंटेन्स नहीं है, ऐसे एरिया में जब जाता था तो मुझे बहुत मिस करता था ये सब चीजें. कौन सी चीजें? माउंटेन्स की. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. ऑथर सेज व्हाई आई लाइक माउंटेन. ही सेज बिकॉज द माउंटेन्स आर नेचर at its best. Nature at its best मतलब mountains are the best form of nature. Best form of nature. Nature मतलब जो भी नेचर में है, आप देखो हिल्स देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, उनमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है? वो माउंटेन्स है. आपने देखा होगा पिक्चर भी, आप नेचर पिक्चर देखते हो तो नेचर पिक्चर में मैक्सिमम नेचर पिक्चर में यू विल फाइंड माउंटेन्स का चित्र जरूर होता है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल लगता है. तो ऑथर कहता है कि माउंटेन्स आर बेस्ट a form of nature. Then their beauty, किसकी ब्यूटी? माउंटेन्स की. एंड मैजेस्टी, मैजेस्टी मतलब भव्यता, है ना, शान, उसका जो हम करेंगे स्प्लेंडिड, बिकॉज माउंटेन्स आर स्प्लेंडिड, शानदार होते हैं. दे आर ब्यूटीफुल. दे पोज अ ग्रेट चैलेंज. पोज मीन्स दे प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट करते रहे? ग्रेट चैलेंज. चैलेंज मतलब आपको आह्वान देते हैं कई किस चीज के लिए. एंड लाइक मेनी I believe that mountains are a mean of communion with God. देखिए ऑथर ने बहुत आंसर बढ़िया दिया है कि वो माउंट एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया. सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आई वॉज सिंस चाइल्डहुड आई वॉज अट्रैक्टेड बाय माउंटेन. आई लाइक्ड माउंटेन सिंस माई चाइल्ड. बचपन से मुझे माउंटेन्स पसंद था. दूसरी चीज, whenever I was away from the mountains, I was always feeling very sad. I felt very lost. Okay. Third, he says that mountains are the best form of nature. Nature at its best. सबसे सुंदर चीज है माउंटेन्स नेचर की. और चौथा है कि माउंटेन्स प्रेजेंट्स अ ग्रेट चैलेंज. चैलेंज मतलब बहुत आपको आह्वान देते हैं. और आई लाइक
and also fourth last thing, he says that I believe that, मेरा विश्वास है कि mountains are a mean मतलब जिसको बोलेंगे माध्यम है. किस चीज का माध्यम है? ऑफ कम्युनियन विथ गॉड. कम्युनियन का अर्थ दिला है बाजूला बघा. कम्युनियन मीन्स स्टेट ऑफ फीलिंग क्लोज रिलेशनशिप. स्टेट और फीलिंग क्लोज रिलेशनशिप. माउंटेन्स पर चढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस करेगा कि यू हैव बिकम वेरी क्लोज टू द गॉड. यू आर वेरी क्लोज टू द गॉड. हो सकता है स्वर्ग करीब रहता ना वहां से, तो इसलिए ऑथर ने ऐसा कहा होगा. तो माउंटेन्स आर अ मीन मतलब माध्यम. किस चीज का माध्यम है? कम्युनियन विथ गॉड. गॉड के साथ फ्रेंडशिप का, क्लोज रिलेशन का एक माध्यम है. देखिए ऑथर के आंसर अंडरस्टूड? सभी समझ में आ गए बच्चों? आंसर हाँ. ऑथर ने क्या आंसर दिया? मैं माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ा? बाकी लोगों ने के आंसर क्या है मुझे पता नहीं. मेरे आंसर ये है, मैं बचपन से माउंटेन से प्रति बड़ा अट्रैक्ट रहा हूँ. जब भी मैं दूर रहता माउंटेन से मैं खोया खोया महसूस करता हूँ, सैड महसूस करता हूँ. थर्ड उन्होंने बताया माउंटेन्स नेचर का सबसे बढ़िया फॉर्म है. माउंटेन्स लुक्स ब्यूटीफुल. नेक्स्ट बताया उसने माउंटेन्स प्रेजेंट ग्रेट चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं. लास्ट वन उन्होंने कहा माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. गॉड के साथ कम्युनियन विद गॉड. यस, रिलेशनशिप के साथ. वेरी गुड. अब नेक्स्ट वाला देखेंगे. देखिए once having granted this, okay, these are my reason. उसके बाद the question remains. Next question comes in my mind. मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, why Everest then? ठीक है, ये सब चीजें दूसरे माउंटेन्स चढ़ने के बाद भी आप ये महसूस कर सकते हैं. दूसरे माउंटेन्स भी ब्यूटीफुल है, दूसरे माउंटेन्स से भी आप यू कैन कम क्लोजर टू द गॉड. बट व्हाई एवरेस्ट देन? एवरेस्ट ही मैंने क्यों चुना क्लाइम करने के लिए? तो ऑथर सेज because it is the highest. Mount Everest is the highest means tallest, सबसे ऊंचा है. the mightiest का अर्थ देखिए, mightiest का अर्थ होता है पावरफुल. आवाज मत करो रे उधर से. किसका वीडियो चालू है? किसका स्पीकर चालू है? बंद करो उधर से, मुझे देखना पड़ेगा. Who is talking? किसके पेरेंट्स बात कर रहे उधर? बेटा म्यूट करो ना उसको. हाँ, क्वेश्चन व्हाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा है. द माइटियस्ट मींस पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाईएस्ट. एंड इट हैज डिफाइड मींस नीचे दिया इधर देखिए. डिफाइड मींस फ्रस्ट्रेटेड, रेजिस्टेड, डिनाइड, फ्रस्ट्रेटेड. डिफाइड मतलब मेनी प्रीवियस मतलब पहले वाले. अटेम्प्ट्स मींस प्रयास. देखिए उन्होंने वो क्यों चुना? बिकॉज व्हाट हैड हैपेंड बिफोर HPS Ahluwalia and his team, many people had tried to climb this Everest, but Mount Everest had defied he means frustrated. उनको हरा दिया था. किसने? माउंट एवरेस्ट ने. प्रीवियस मतलब पहले वाले अटेम्प्ट मतलब जितने भी प्रयास लोगों ने किए थे, they were unsuccessful, they were not successful. That's why he decided, yes, I will try and I will become successful. इसलिए उन्होंने माउंट एवरेस्ट चुना. लोग पहले नहीं चढ़ पाए, मैं चढ़ूंगा. And author says it takes the last ounce of one's energy. It takes, Mount Everest takes निकालता है. क्या निकलता है रे? The last ounce. ounce क्या होता है? आपका जो शरीर में जो भी शक्ति है, आपकी एनर्जी है, उसका ये गिनने का एक माप है. ounce मतलब लास्ट, आखिरी कतरा. आपके एनर्जी का आखिरी कतरा भी चाहिए आपको. पूरी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू स्पेंड ऑल योर स्ट्रेंथ, ऑल योर एनर्जी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. से नेक्स्ट, इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल. ब्रूटल मींस भयंकर स्ट्रगल है. स्ट्रगल मतलब संघर्ष है. इसके साथ विथ रॉक, रॉक मतलब पत्थर के साथ. एंड आइस, आइस मतलब बर्फ होती है वहां पर, रॉक होता है. और आइस भी कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है. So climbing Mount Everest is very difficult task. That's why he selected, he chose it, because it is a brutal struggle, very brutal struggle, संघर्ष है with rock and ice. Once taken up मतलब once you started climb Mount Everest,
इट कैनॉट बी गिवन अप. गिवन अप मतलब क्या रे? छोड़ देना, त्याग देना. हाफ वे, हाफ मतलब अर्ध्या रस्त्यामध्ये तुम्ही सोडू शकत नाही. तुम्ही जेव्हा क्लाइंबिंग स्टार्ट करता आणि जेव्हा जर मधात थकले तुम्ही, तो यू कॅनॉट गिव अप. गिव अप मतलब उसको छोड़ नहीं सकते बीच बीच में. इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक. एट स्टेक मतलब डेंजर. एट स्टेक का अर्थ होता है डेंजर. इवन व्हेन योर लाइफ इज इन डेंजर, तुम्हारी लाइफ खतरे में भी है, तो भी यू कैनॉट लिव इन हाफ वे. हाफ वे में उसको छोड़ नहीं सकते आप चढ़ाई. इतना डिफिकल्ट है. ऐसा क्यों है रे? क्योंकि वहां माउंट एवरेस्ट में क्या है, जितना आगे जाना कठिन है उतना ही पीछे आना भी कठिन है. तो इसलिए आप कितने भी डेंजर में, आपकी रिस्क में क्यों ना रहो, आपकी लाइफ कितने भी खतरे में क्यों ना रहे, यू कैनॉट लिव इट हाफ वे. ऑथर सेज द पैसेज बैक. पैसेज मतलब जो रास्ता होता है, बैक पीछे जाने वाला, इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड. जितना रास्ता पीछे का कठिन है, आगे का जाने का कठिन है, उतना ऑनवर्ड जाने का, ऑनवर्ड मतलब आगे जाने का कठिन है. पैसेज मतलब रास्ता. ओके, देन खत्म करेंगे जल्दी. 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे मीटिंग बेटा अपनी. 7 ही मिनट बचे. ओके, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड. समिट इज क्लाइम्ड. समिट मींस द चोटी. देयर इज द एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन स्पेलिंग देखिए. एक्सिलरेशन का अर्थ होता है एक्सट्रीम जॉय. एक्सट्रीम जॉय मींस एक्सट्रीम हैप्पीनेस. एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो जाना. कब? व्हेन यू क्लाइम द समिट. जब आप समिट इज क्लाइम, जब, अब देखिए 2 मार्ग है आपके पास, 2 चॉइस है. आपने चढ़ाई शुरू कर दी, बीच तक आए, अब उसके बाद आपका आगे जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पीछे भी नहीं जा सकते, छोड़ नहीं सकते. अब आपको एक तो ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है. नीचे जाके कोई भरोसा नहीं है क्या होगा आपके साथ. ऊपर गए तो भी भरोसा नहीं, ऊपर जाते जाते भी मर सकते हैं, नीचे जाते जाते भी मर सकते हैं. ऊपर जाते जाते हो सकते हैं आप सक्सेसफुल हो जाए, नीचे जाते जाते भी आप सक्सेसफुल हो जाए. हो सकता है आप सेफली नीचे उतर जाओगे. लेकिन क्या होगा, फर्क क्या है दोनों में, क्या डिफरेंस है? अगर आप आगे चलते गए तो क्या मिलेगा आपको? अगर सपोज यू आर सक्सेसफुल, देन देयर इज द एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन मतलब आपको खुशी मिलेगी, यू आर सक्सेसफुल. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, वो आपको आनंद मिलेगा ऑफ हैविंग डन समथिंग, मैंने कुछ करके दिखाया है. एंड द सेंस ऑफ बैटल फॉट. एक सेंस, फीलिंग, सेंस मतलब फीलिंग मिलेंगी. कौन सी फीलिंग मिलेगी? बैटल. बैटल मतलब लड़ाई. फॉट, फॉट मतलब आपने लड़ाई लड़ी है. किसके साथ? माउंटेन्स के साथ, कठिनाइयों के साथ. एंड ओन, और आपने वो जीती है. ये फीलिंग्स आपको कब आएगा? ऊपर चढ़ने के बाद, अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं तो. लेकिन ये फीलिंग्स आप अगर नीचे उतरते हुए अगर सक्सेसफुली नीचे भी उतर गए, यू विल नॉट गेट सच काइंड ऑफ फीलिंग. ये फीलिंग नहीं मिलेंगी आपको. आपको कौन सी फीलिंग मिलेंगी? फीलिंग ऑफ डिफीटेड. हारने की फीलिंग्स आएगी ना, यार मैंने आई ट्राइड बट आई वाज नॉट सक्सेसफुल, I am defeated. This feeling you will get. There is a feeling of victory and of happiness. आपको विक्ट्री और हैप्पीनेस का फीलिंग्स आएगा ऊपर जाने के बाद. नीचे जाने के बाद आपको हार का फीलिंग आएगा. इसलिए ऑथर कहता है कि आगे जाने में ही you must, he decided to go on and not to go back. Okay, now next slide देखिए. ये वो क्लाइम है, ये देखिए यहाँ पर, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे ऑथर. यहाँ पर क्या दिखाया ऑथर ने? आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू माउंटेन्स सिंस आई वाज अ चाइल्ड. बचपन से ही माउंटेन्स की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ. एंड आई बिलीव माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड. गॉड के साथ कम्युनियन करने का सबसे अच्छा माध्यम है. ऑथर सेज वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट. एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, इट इज द माइटीएस्ट. ये क्वेश्चन आता है रे भाई, आपको ये वर्ड्स याद रखना है. हाईएस्ट, माइटीएस्ट. माइटीएस्ट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग. देन इट हैज डिफाइड. डिफाइड मींस हराया है इन्होंने. किसको? प्रीवियस अटेम्प्ट. प्रीवियस मतलब पहले वाले, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, जो पहले लोग ट्राई किए इसको सर करने के लिए. ऑल फेल्ड. It drains every ounce of one's energy. It takes all your power. It all takes all your strength, all your energy. The physical conquest. फिजिकल कॉन्क्वेस्ट का अर्थ होता है विन. फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. ऑथर देखिए ये क्लाइम कर रहे हैं इधर, और बट देयर इज मोर, इट्स इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. ऑथर क्या कहते हैं? देखिए ये पार करने के लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ तो होना ये, लेकिन उसके साथ क्या होना?
इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, एंड देन इमोशनल. इमोशनल मतलब भावनिक. ओके, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. ये तो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, ऊपर चढ़ना मतलब फिजिकल हो गए, फिजिकली विन कर दिया आपने. लेकिन यू विल आल्सो गेट द फीलिंग्स ऑफ इमोशनल विन एंड स्पिरिचुअल विन. आध्यात्मिक तौर से भी आप जीतोगे, इमोशनली भी आप जीतोगे. ओके, आप मुझे बताइए, यहाँ रुकेंगे हम. लेसन यहाँ तक समझ में आया बच्चों? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, थोड़ा Yes, sir. Yes. देखिए. Yes, sir. Okay, see, this lesson is little bit philosophical है थोड़ा सा ये लेसन. तो थोड़ा इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको क्या करना है, अगर नहीं भी समझने आया तो इसका जो वीडियो मैं भेजूंगा उसको फिर से देखना. 2 मिनट में खत्म करता हूँ. 2 मिनट में खत्म करता हूँ. Which can only be called mystical. mystical, mystical का अर्थ होता है यहाँ पर मिस्टिकल, जो स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल. अब विच कैन ओनली बी कॉल्ड, जो आपको फीलिंग्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल फीलिंग जो मिलेगा आपको, आध्यात्मिक फीलिंग जो मिलेंगे, वो फीलिंग वहां जाने के बाद आपको मिलेंगे माउंट एवरेस्ट पर. बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest. See how many difficult words are there. देखिए, aloofness, aloofness मतलब एकांत, loneliness, might मतलब strongness, then ruggedness. ruggedness क्या होता है? ये आप माउंटेन क्लिप देखिए, ये प्लेन नहीं है, प्लेन स्मूथ नहीं है. रजेडनेस मतलब जहां पर बहुत उसको एजेस होते हैं, एजेस, उसको कहते हैं रजेडनेस. एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड का अर्थ होता है फेस्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड. इन सब चीजों के कारण मैंने माउंट एवरेस्ट को चुना. क्या चुना? क्या था? माउंट एवरेस्ट ब्यूटीफुल था, अलूपनेस था मतलब एकांत था, लोनली था, माइटी था, स्ट्रॉन्ग था, रजेड था, रजेड मतलब सॉफ्ट नहीं था. देयर वर मेनी डिफिकल्टीज ऑन द वे, बहुत सारी रास्ते में डिफिकल्टीज थी. और उसके बाद जो पीक होती है, समिट होती है, इट ड्रॉस टू मी, अट्रैक्ट्स मी, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. ओके, अब ये क्या करता हूं मैं, इसको स्टॉप करता हूं शेयरिंग को. आप वीडियो चालू करो 2 मिनट में बस. एवरीवन, हाँ सभी लोग दिखाओ है क्या मुझे? हाँ, आकाश उपरे समझला बेटा लेसन? हो सर. सिद्धेश्वर, हो सर. सिद्धेश्वर पाटोळे. हो सर. ओके, आता मी काय करणार आहे बघा. तुम्हाला आता किती जण आहे रे मीटिंगला प्रेझेंट? 46. 46.